Sir. Please come. Good morning, sir. Good morning, sir. Bed. Thank you, sir. ग्रेजुएशन कब किए हैं? Sorry, sir. ग्रेजुएशन कब किया आपने? Sir, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? Sir, both. ओके, सो जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम एंड एनी प्लेस एसोसिएटेड विद यू, एंड दैट टू ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स. Sir, I have completed my graduation in Electronics and Communication Engineering from Heritage Institute of Technology, which comes under Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. And after that, sir, I have worked for 1 year at Tata Consultancy Services as Assistant Systems Engineer. And since then, sir, I have been preparing for civil services. And my hobbies are, sir, playing cricket and doing meditation. Very good. So you are basically an engineer, right? Yes. And currently you are into job or you have left the No, job? sir, I have left the job. Okay. What is your job experience? For how many years you did the TCS job? Sir, 1 year and 2 months. Only 1 year and 2 months. Yes, So why sir. you left the job, yeah? So Sir, you were fired from the job or you मतलब कि voluntarily resigned from the job? Sir, I resigned from the job to prepare for civil services full-fledgedly, sir. So why people from engineering background and that too having jobs, they wanted to join civil services? Sir, I joined job because I thought in civil services there are a lot of uncertainties, so I will have a backup if for some reason I am unable to qualify here, then I can get back to the IT sector again. That was the reason behind joining job. My question is really different. Why people from engineering background, they can get a good job in private sector, and in your case you have been in the job, Yes. but still they come to civil services. What is the reason? Sir, I think there are 3-4 main reasons behind that. First one is, sir, in the engineering, especially in the IT sector, the jobs in the services sector, it starts with a very mediocre pay scale. Therefore, the students who are in 3rd, 4th year, they start looking for other options that we have. And second is, sir, while doing engineering, you get to know a lot more things, sir. Along with your engineering subjects, we are being taught something extra other than engineering. So that is so there some people look for other career options as well. And sir, third is You mean to say that when people join yes, sir. engineering college, Yes. so they are not aware of the limitations of their engineering things, Yes, sir. and secondly they get some exposure out Yes, out sir. there, and they change their mind to join civil services. Yes, sir. Is this the case? Yes, sir. I believe in most of the situations this is the case. It means that nomenclature of the engineering colleges should be changed. It should be made Institute of Administrative Services or something, because when people will join, Sir. they are bound to choose civil services. No. Sir, I believe there is one more thing. A lot of people are doing engineering as well. Initially, sir, most of the after 12th, most of the students would go into art subject and would do graduation, or in science subject they would do graduation. But now most of the students are thinking if we are giving 3 years in a graduation, better to give 4 years and get a technical degree. So a lot of students are doing engineering as well, sir. According to the data, almost 14-15 lakhs. That I got it. That is not an Yes, issue. See, a lot many resources are involved in making a person engineer. Yes, sir. Either it is a personal resource, family resource, or it is a government resource. Yes, sir. And when they choose to become a civil servant, that entire resource is a waste. What's your opinion? Sir, I believe in civil services also there should be diversity. People from diverse backgrounds should come and join civil services. Only then the administration in our country can be improved, because people from different mindset, different backgrounds, if they will come, they will have different ideas, sir. And all of them can culminate to make our country and take our country move forward, sir. What sort of diversity you find in civil services? Sir, for example, if I join as an IAS or an SDM, I will have opportunity to work in diverse sectors, sir. From women empowerment to, sir, working for the disabled, then working for the disadvantaged section of the society, sir. Working in education sector. There are many diverse fields in which I can contribute, sir. Oh, my question is a little different. What sort of diversity is present in the civil services? Yes. What sort of diversity? Sir, in terms of manpower,
Yeah, in terms of manpower, in terms of the target group. Sir, in terms of manpower, I would say recently it has been seen that the civil services are dominated by the engineering graduates, but it was not the case 20-30 years back when a lot of people from the science stream and the graduation were joining the civil services. And now, sir, many doctors are also joining civil services. People from law background, people from different sectors are joining civil services, sir. It seems hypothetical sometimes. People are forced to. Please. आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना और मेडिटेशन करना, सर। अच्छा, क्रिकेट में अभी रिसेंटली इंडिया कहाँ खेल रही है? सर साउथ अफ्रीका में। कंफर्म है? यस सर। मेरा क्वेश्चन था क्रिकेट में कहाँ खेल रही है, मैंने मेंस क्रिकेट की जी सर, अगर महिलाओं के क्रिकेट की बात करें तो अभी मुंबई में सर मैच चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और पुरुष लोग सर साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं। ठीक है। वुमेंस क्रिकेट के कैप्टन का नाम बताइए। सर वर्तमान में हरमनप्रीत कौर हैं सर। और मेंस में? सर रोहित शर्मा है। अच्छा, अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा क्रिकेट को लेकर के एक क्रेज़ देखने को मिलता है। रिसेंटली वर्ल्ड कप था तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। अदर जो गेम्स हैं इंडिया में वो राइज नहीं कर रहे हैं क्रिकेट के कारण, ऐसा परसेप्शंस देखने को मिलता है। कितने सहमत हैं आप इससे? जी सर, मैं इस बात में कुछ सच्चाई ज़रूर है सर कि क्रिकेट में जो ग्रोथ हुआ है वो और स्पोर्ट्स उसको इमिटेट नहीं कर पाए हैं। इसके 2-3 कारण हैं सर। पहला कि शुरू में क्रिकेट में भी सर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, लेकिन जो 1983 का वर्ल्ड कप था जिसको इंडिया ने जीता, उसको वाटरशेड मोमेंट हम लोग बोल सकते हैं इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने में। और सर 1990 में जैसे कलर टेलीविज़न आया और सचिन तेंदुलकर का राइज़, ये दोनों सर मिल के क्रिकेट को एक बहुत ऊपर ले गया। और जैसे जैसे अलग अलग खिलाड़ी आते गए उन्होंने क्रिकेट को भारत में और पॉपुलर ही किया है। दूसरे के डाउनफॉल के रीज़न बताइए ना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि दूसरे क्यों अपलिफ्ट नहीं हो पाए क्रिकेट के कारण? सर दूसरे का कारण ये है सर, और एक्सेसिबिलिटी का भी है सर। क्रिकेट सर कोई भी खेल सकता है, छोटे से फील्ड में छोटे से ग्राउंड में एक डंडा और बॉल चाहिए और बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही हॉकी देखें तो हॉकी के लिए हमें स्टिक चाहिए होता है और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उस टाइप का सर, जो मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है और लोग उससे जुड़ जाते हैं आसानी से, तो इसीलिए पॉपुलैरिटी भी है सर। अच्छा, दूसरे गेम में अगर कहें तो कबड्डी, कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही नहीं। खो खो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें फुटबॉल, एक बॉल है, ईज़िली आपने 22 लोग खेल रहे हैं जी सर। उसके कोई क्रिकेट किट नहीं चाहिए, ना ही लेदर बॉल चाहिए। तो ये जो आपका पॉइंट है कि ईज़िली एक्सेसिबल है, तो ये तो नहीं मैच कर रहा आपके इस पॉइंट से। सर हॉकी और कबड्डी और खो खो के साथ दिक्कत ये है कि सर वो अधिकतर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही खेला जा रहा है, बाकी जगहों में उतना ज़्यादा इसकी विकास नहीं हुई है। लेकिन क्रिकेट सर कम देश खेल रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज ये सर स्प्रेड ज़्यादा है। यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज़ खेलते हैं। मैं आपसे एक लास्टली क्रिकेट पे बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर हॉकी को अगर इंडिया में इसी लेवल पे लाना हो क्रिकेट के लेवल पे, तो क्या करना पड़ेगा? सर मुझे लगता है सबसे पहले जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। बीसीसीआई को सर जैसे ऑटोनॉमी मिला है वैसे हॉकी फेडरेशन को भी अगर मिले तो अच्छा होगा। हॉकी के साथ दिक्कत ये है सर कि वो ओलंपिक का भी गेम है, तो उस ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी उसमें ऑब्जर्वेशन रहती है, जिसके कारण वो सारे काम स्वतंत्रता से नहीं कर पाती हैं। और दूसरा ये है सर, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है गांव-गांव में सर, और जो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम अगर हम एक हॉकी सर स्टेडियम बना पाएँ तो उससे बेहतर होगा। और जैसे सर अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रहा है हॉकी को सपोर्ट करने के लिए, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, तो मुझे लग रहा है अगर वैसे ही हर एक स्टेट 1-2 स्पोर्ट को अगर एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो सारे खेल सर हॉकी के साथ सारे खेल भी और बेहतर होंगे सर। ठीक, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चूज़ करने के पीछे रीज़न? सर पहली रीज़न ये थी कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट था, और दूसरा रीज़न था सर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल थे उस समय। विंड किसको कहते हैं? सर जो प्रेशर डिफरेंस के कारण सर मूवमेंट ऑफ एयर होती है उसे विंड कहते हैं। एयर और विंड में क्या डिफरेंसेस होता है? सर विंड का एक फिक्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, एयर का वैसा नहीं है सर, और एयर से ही सर विंड बनती है।
इन्वायरमेंट में एयर है या विंड है? सर इन्वायरमेंट में एयर है, लेकिन इन्वायरमेंट कंडीशंस के कारण विंड पैदा हो सकती है। कौन कौन से एयर है? सर एयर तो एक ही है सर, उसमें अलग अलग कॉम्पोजिशंस हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन बताइए। सर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, आर्गन है। उसका रेशियो भी बताइए। सर ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स है, नाइट्रोजन सर 72-73% है, कार्बन डाइऑक्साइड सर 0.03% है, और बाकी सब सर 1% से कम ही है। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जी सर। जो कि आपने गलत बताया, 78 होता है। ठीक है, Yes. थोड़ा ध्यान रखेंगे। जी सर। ठीक है सर। हॉबी क्रिकेट है। जी सर। आपको क्या लगता है इंडिया वर्ल्ड कप में कैसे क्यों हार गया, कि क्या इसके पीछे रीज़न आपको लगता है? मुझे लगता है सर क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप का कैंपेन था इंडिया का, वो अभी तक का सबसे बेहतर कैंपेन था जो एक स्पैन में देखा जाए। लेकिन मुझे लगता है फाइनल में सर स्किल वाइज हम लोग उससे कम नहीं थे, लेकिन टैक्टिकली शायद हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। पिच को रीड करने में और कंडीशंस को रीड करने में ऑस्ट्रेलियन सर हमसे आगे थे, इसीलिए शायद सर ऑन दैट डे सर हम लोग उनसे पीछे रह गए। गुड। मैन ऑफ द सीरीज किनको दिया गया था? सर विराट कोहली। मैन ऑफ द मैच? सर ट्रेविस हेड। अभी आईपीएल का कुछ ऑप्शन वगैरह चल रहा था, जी सर। इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस किसको दिया गया है? सर मिचेल स्टार्क सर। किस टीम के लिए? सर KKR। श्योर? यस सर। अच्छा, आप बात चली है खेल की, तो कुश्ती संघ का क्या विवाद है अभी जो काफ़ी 1 साल से चल रहा है, क्या विवाद है? सर उसमें दो पक्ष हैं, एक सर जो कुश्ती फेडरेशन के अभी हेड थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, और दूसरे तरफ सर खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि जो कुश्ती संघ के जो हेड हैं उनके अगेंस्ट में यौन शोषण का आरोप है सर, और कुश्ती संघ के जो चीफ हैं उन्होंने इन सब से इनकार किया है। केस अभी सर कोर्ट में लंबित है, और अभी रिसेंटली में सर चुनाव हुआ था जिसमें सर एक क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ही फिर से जीत गए थे। तो उसके अगेंस्ट में सर बहुत सारे खिलाड़ियों ने अभी रिसेंटली में सर, जैसे बजरंग पुनिया हैं, और ये लोग सर अपने जो मेडल्स मिले थे उसको वापस कर रहे हैं। आपने कहा कि मैटर कोर्ट में है, फिर भी क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? सर उनका ये कहना है कि जैसे उनका पहले ये कहना था, जो अभी रिसेंट में जो चुनाव हुआ है उसमें उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का। उसके अगेंस्ट में अगर उसके जगह पे अगर कोई वुमन चीफ बन के आती तो एक अच्छा मैसेज जाता है, ऐसा उनका ये कहना है। कैसे है उसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? सर वो वोटिंग के थ्रू होता है सर, अलग अलग जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं उन लोग मिल के सर चुनाव करते हैं सर। ठीक है। आपने दिया है मेडिटेशन। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? सर 21 जून को सर। 21 जून को। कब से मनाया जा रहा है? सर मुझे एग्जैक्ट डेट ये। ओके, गुड। आपको क्या लगता है कि विश्व योग दिवस के कारण को मनाने से भारत को इंटरनेशनल लेवल पर कुछ फ़ायदा हो सकता है? जी सर, मुझे लगता है भारत की सॉफ्ट पावर इससे और ज़्यादा एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं सर में योगा के थ्रू, और दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू सर, जैसे जापान है सर, वो इंडिया से योगा टीचर्स को लाने की कोशिश कर रहा है, और तो उससे भी सर जो हमारी मैन पावर है और जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी हम सर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को सर। आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात किया है, क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब सर एक एज ग्रुप सर, जिसमें जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे अभी उस एज ग्रुप में है, ताकि देश जो है सर उसमें वर्कर का जो शेयर है सर वो पूरे पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है। इसका मतलब कि सर देश जो है वो उसका फ़ायदा उठा के और तेज़ी से तरक्की कर सकता है। कौन सा एज ग्रुप होता है सर? ये 15 to 59 का एज ग्रुप जो होता है सर। 59? यस सर। आपको क्या लगता है बिहार की जनसंख्या बोझ है बिहार पे, या डेमोग्राफिक रूप से हम इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर, बिहार मुझे लगता है सर कि सबसे यंगेस्ट स्टेट में से एक है, जिसमें 53% पॉपुलेशन सर हमारी 35 ईयर्स से कम है। तो नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है, 12 करोड़ अब तो नई सर्वे में आया है। आपको क्या लगता है ये बोझ है या फिर ये अवसर है? आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज कर, अगर हम लोग सही से मैनेज कर पाएँ, सही स्किल दे पाएँ और सही हेल्थ केयर अगर कर पाएँ, तो ये बोझ बिल्कुल नहीं होगा सर, ये हमारी ताकत ही होगी सर।
कैसे मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स आपके दिमाग में कुछ होगा? सर मुझे लगता है एजुकेशन के फील्ड में हम लोग को शुरू से ही काम करना चाहिए सर, और बच्चों को प्री स्कूलिंग में भी सर बिहार में हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बिहार में सर देखने को ये मिला है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ बच्चे बहुत लेट से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अगर शुरू से ही अगर उनका फाउंडेशन अच्छा हो तो वो अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे और वो बिहार के प्रगति में भी अपना रोल दे पाएंगे सर। हम 15 से 59 के बीच की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। सर 15 से 59 में अगर किसी को अगर उस एज ग्रुप में अगर अच्छा करना है सर तो उसका फाउंडेशन बचपन में ही बनेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बचपन से ही ध्यान दिया जाए तो जब तक वो अपने प्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे सर। ठीक है, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट है? जी सर। अच्छा, ये बताइए यूएनएससी में कितने मेंबर्स होते हैं? सर यूएनएससी में कुल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 सर परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 सर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। क्या इंडिया को मिलना चाहिए इसकी सदस्यता? सर इंडिया को पिछले 8 बार से सर टोटल में सर 8 बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इसमें जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि परमानेंट मेंबरशिप में भी इंडिया की दावेदारी बहुत स्ट्रांग है सर। बहुत अच्छे। अयोध्या में क्या चल रहा है? सर अयोध्या में अभी राम टेम्पल का उद्घाटन होने वाला है। कब उद्घाटन होने वाला है? सर 22 जनवरी को तिथि फिक्स की गई है सर। कल भी कुछ हुआ था? जी सर, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाके एक एयरपोर्ट की उद्घाटन किए हैं और एक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किए हैं सर। एयरपोर्ट का क्या नाम है? सर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हेरिटेज स्कीम के बारे में आप सुने हैं कुछ? ये सर क्या होता है? सर ये अभी सरकार ने एक अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत सर गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी चाहे तो एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकती हैं और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती हैं सर, उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी। तो इससे क्या होगा? इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? जी सर, इसमें सरकार का ये कहना है कि सोसाइटी को भी इंक्लूड करें हम लोग किसी तरह हेरिटेज के कंजर्वेशन में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हेरिटेज पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? इससे क्या फ़ायदा है? सर मेन ऑब्जेक्टिव यही है सर कि हमारा टूरिज़्म सेक्टर बूम करे, और दूसरा ये है सर कि भारत की पहचान इंटरनेशनल लेवल पे भी बने और लोगों को रोज़गार भी मिले सर टूरिज़्म के क्षेत्र में। बिहार में कौन कौन से स्थल आपके अनुसार, आपका ज्योग्राफी भी है, जिसको हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जा सकता है? सर जैसे सीतामढ़ी है सर, वहाँ पे पनौरा धाम है, उसमें अभी लव कुश का एक बन रहा है सर। ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जाके उसका ये किए हैं शिलान्यास, तो उसको एक डेवलप किया जा सकता है सर हेरिटेज के तौर पे। दूसरा सर नालंदा विश्वविद्यालय है, वो सबसे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट कह सकते हैं सर हम लोग। और सर गया में जो धाम है वो भी सर हेरिटेज के श्रेणी में आएगा सर। बहुत अच्छे। गया में क्या, किस लिए गया प्रसिद्ध है? सर वहाँ पे विष्णुपद टेम्पल है सर, जहाँ पे लोग जाके अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं सर। विष्णुपद टेम्पल्स का निर्माण किसने करवाया था? सर अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था सर। कहाँ की थी वो? सर वो ग्वालियर की थी। तो ग्वालियर से फिर गया, ग्वालियर टू गया। सर वो जब मराठा एम्पायर का जब सर एक्सपेंशन हो रहा था तो वो ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया के करीब तक पहुंच गया था, बिहार तक से थोड़ा सा ही बाकी था, तो मुझे लगता है उसी दौरान इसका निर्माण किया गया होगा सर। ओके। बिहार का ज्योग्राफी बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप है? सर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें वो अभिशाप ज़्यादा साबित हो रहा है वरदान से, क्योंकि जो नॉर्थ बिहार है सर वहाँ पे फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और साउथ बिहार में सर ड्रॉट का दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि सर इसे चेंज भी किया जा सकता है और इसे हम अपने वरदान के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो मिट्टी है सर वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है। और जो साउथ बिहार है सर वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स भी हैं, जैसे अभी जमुई में सर गोल्ड की माइंस का ये पता चला है सर। तो मुझे लगता है कि उसका अगर हम लोग बेटर यूज़ कर पाएँ और अगर जो चैलेंजेस है ज्योग्राफी हम लोग के पास थ्रो करती है, अगर उसको बेटर हैंडल कर पाएँ तो हम लोग इसको वरदान के रूप में ही देख सकते हैं सर। बिहार बिजनेस कनेक्ट के बारे में सुना है? जी सर। क्या है? सर अभी रिसेंटली में 13 और 14 दिसंबर को सर बिहार बिजनेस समिट हुआ है, जिसमें 606 कंपनीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ है और 303 कंपनियों ने सर इसमें से
इन्वेस्टमेंट पिच भी किया है और 4 सेक्टर्स में सर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स आए हैं सर। कौन कौन से वो सेक्टर हैं? सर एक फूड प्रोसेसिंग है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है और आईटी सेक्टर है सर। Thank you. You can go now. ठीक है Interview is over. थैंक यू सर। Thank you.